ये मैथ का तो गड़बड़ करते हैं ना, मैथ इस पे नहीं होना चाहिए, ज्यादा हेडेक हो जाएगा जो मेरा लेक्चर देखूंगा। आप लोग भी करना मत है ना कि नहीं आ रहे हैं, ऑनलाइन देखेंगे, ऑनलाइन मैथ नहीं आता। ओके, so how many of you from science background? Science background, one, two, three. यहाँ कोई नहीं? No one. Okay, come. मैं अपनी दुकान ले लूँ। How many of you like maths? एक, थोड़ा सा। I like 50%, करेक्ट? ऐसा थोड़ा आप लोग, you like 20% मैथ, 20%, थोड़ा थोड़ा। तो क्वालिफाइंग कितना है मैथ्स के लिए, सी साइड के लिए? क्वालिफाइंग परसेंटेज 33%, और आप लोग लाइक करते हो 20%। तो थोड़ा काम करना है, इसको 20 से 33 पे जाना है, 13% वी हैव टू इम्प्रूव, करेक्ट? ऐसे इन मैथ्स व्हाट डू यू हेट इन मैथ्स? पूरा मैथ्स की मैथ्स का कुछ पार्ट यू हेट, समथिंग लाइक दैट? थ्योरम्स, हाँ, इंटीग्रेशन डेरिवेशन, ओके, ओनली दैट, ट्रिग्नोमेट्री ओनली। So for your kind information, trigonometry, integration, derivation does not come in UPSC. So what does come in UPSC mathematics में? 10th level maths and reasoning, है ना? 10th level maths and reasoning. I hope you must have cleared your 10th standard 4 years back, something. So 2020, 2018, 17, 17, 18, you completed your 10th standard? Long back. 2018, okay. So you completed your 2015, 10th, correct? Something like that. So what you had in maths in your 10th standard? You remember some of the topics? Probability, very famous, right? Statistics you had, mean, mode, median, and linear equation, percentage, and anyone else from here? Number system. In number system, what you had? Just you know the topic name, right? Till 10th standard or till 9th standard, you had the whole number system. You started from the senior KG, say like that. You started counting number 1, 2, 3. That is itself is the number system. Then natural number, then whole numbers, then integers. Integers we came across in 4th and 5th standard, right? Then rational number. Rational number were in 6th standard. Fraction, है ना? Addition, subtraction, multiplication, division of fractions. That was 6th and 7th, right? Then 8th and 9th we came across real numbers. But with that root 2, root 3, how to add, subtract, multiply with root 2, root 3, root 5. The everything is that number system only. Then 11th and 12th we came across as complex numbers. So we are dealing with numbers only, right? We are dealing with numbers. I said till 7th standard, how many of you like maths? Till 7th standard, how many of you like maths? Till geometry and algebra was not introduced to you, है ना? As soon as algebra and geometry got introduced, flat, है ना? So what is going on? So you were good those times, है ना? You used to like maths. अच्छे ढंग से बैठ जाओ, ऐसे क्लास में नहीं बैठते, कल टीचर बैठते हैं। बी लाइक स्टूडेंट, राइट? अभी बैठ जाओ, तुम्हारी पुरानी आदत हो गई, इधर आ जाओ। सीट भी नहीं छोड़ा, सीट भी वही पकड़ के रखा है, हवा है, आवाज से बच रहा है।
चलो ठीक। तो कुछ प्रैक्टिस वगैरह किया था आपने, नहीं किया था? नहीं। टॉपिक याद है कुछ? हाँ। हाँ। अरे, यूटिलाइज योर टाइम, है ना? यूटिलाइज योर टाइम। व्हाट वी हैव, यू नो सी सेट पैटर्न? सी सेट पैटर्न क्या होता है? कितने क्वेश्चंस आते हैं? 80 क्वेश्चन। फॉर हाउ मेनी मार्क्स? 200। एंड हाउ मच टाइम? 2 hours, right? 2 hours means how many minutes? 120 minutes, 80 questions, right? So for one question, how many minutes? 1.5 minutes. मतलब 1 minute 50 seconds. Correct? 30 seconds. Okay. So what we got to do here? First thing is the prelims, right? In prelims, what we have? GS, and then here CSAT. What is full form of CSAT? Civil services. Which services? Civil. है ना? लोग, सिविल मतलब क्या? लोग ना, नागरिक, उनकी सेवा करना है। उसके लिए कुछ आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। आप सेवा करने योग्य हो या नहीं हो, है ना? सोसाइटी को सर्व करने के लिए आप कैपेबल हो या नहीं हो, वो उसका टेस्ट है। ऐसा नहीं कोई उठ भी जाने मुझे मुझे भी सर्विस दो, है ना, मैं भी करना चाहता हूँ, मन कर दे। तो यू शुड हैव दैट एप्टीट्यूड। सो इन जीएस में क्या क्या आता है? हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्स, एथिक्स, राइट? व्हाई यू आर लेट? ट्रेन वाज लेट, दैट इज तो माय आंसर। I am never late, only train is late, right? So one time, है ना, इस बार चल जाएगा इंट्रोडक्शन। Otherwise you are late for 45 minutes, the whole match is gone, because the first, you know, discussion about the fundamental, about the concept is just half an hour, 45 minutes. After that, whatever we are discussing is just solving the question based on whatever we have discussed. Okay, so you know this thing. So how many questions are here? 100. How many marks? 200. Total time? 2 hours. Over here we have question number 80. Total marks is 200 and total time is how much? Hours. Right? Yes or no? So each question is for how many marks? So each question, तो क्या करेंगे? 200 upon 80. 200 upon 80. 0 0 get cancelled. That is 4 5 ja 4 2 ja. That is 2.5 marks. Each question for how much marks? 2.5 into 80, है ना? Into 80 will give you 200. Then एक मिनट में आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं? 120 minutes, 120 minutes 200 क्वेश्चंस। तो एक मिनट में आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं? 200 अपॉन 120, राइट? एटी। अच्छा नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ एक मिनट में कितने मार्क्स, एक मिनट में कितने मार्क्स का करना पड़ेगा आपको एक मिनट में? 200 अपॉन 120 ऐसे कैंसिल करो तो 4 5 जा 4 3 जा 1.66 मार्क्स। हर मिनट में 1.66 मार्क्स आप करते जाओगे। एनीवे, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आई बेग योर पार्डन, है ना, बाद में देख लेंगे। सो दिस इज क्लियर टू यू? ये क्या किया मैंने, राइट? नाउ इन सी सैड, आप लोग बाकी हो, आ जाओ, ये भी पहचानती है मुझे।
Now what? In CSAT, what are the topics? CSAT में क्या क्या होता है? बुक अपने आप लोग पास है या नहीं है? Do you have any book? No. How many of you are going to appear this year, 2024? Half of the class. You don't have the books? कोई तो बुक रहना चाहिए था ना? हाँ? PY? Previous such questions. You should have a book. एक book है that is क्लास से ही मिला है या नहीं मिला आपको? नहीं मिला? अच्छा ठीक है. So this is the CSAT only for CSAT, only for this section, right? तो इसमें होता क्या क्या है? इंग्लिश बहुत सारे देखो. एग्जाम विल बी इन मंथ ऑफ मे और जून दिस ईयर. मे बाय May 26. तो आप लोग ये फिनिश कर लोगे एक दो तीन बार में? कैन यू फिनिश दिस बुक 2-3 times बाय दैट टाइम? एक बार करने से तो होगा नहीं. होगा? चलो ठीक है. सीधा सी सेट व्हाट डू वी हैव? पेपर में क्या क्या आता है? इंग्लिश comprehension, English language, right? Then we have basic numeracy, right? Basic numeracy means what? It's pure maths जो आपने 10 तक किया है. Then we have general mental ability, right? Then we have logical reasoning and analytical reasoning, right? Logical reasoning, and then we have DI and DS. DI and what is that? DI? What is data interpretation? करेक्ट. ग्राफ दिया रहेगा है ना? सॉरी ग्राफ ऐसे रहेगा ना? बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ. तो बेस्ड ऑन दैट पूछेंगे. दो कंपनी का कंपैरिजन दिया रहेगा, राइट? विच कंपनी इज परफॉर्मिंग बेटर? इंडिया का जीडीपी और चाइना का जीडीपी कंपेयर करेंगे. किस सेक्टर में, कौन से सेक्टर में किसका प्रोडक्शन ज्यादा है, राइट? ऐसे करके डेटा दिया रहेगा. यू हैव टू कंपेयर दैट. यू हैव टू कंपेयर करने के लिए हम लोग मैथ्स में किसका यूज करते हैं? विच टॉपिक वी यूज फॉर कंपेरिजन? अच्छा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हु इज बेटर बैट्समैन? कैसे कंपेयर करोगे? स्टैट्स में तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, उसमें कुछ यूज करोगे? ग्राफ्स यूज करोगे. अच्छा, यहाँ पे मैं टेस्ट लूँ एवरेज, है ना? यहाँ पे मैं टेस्ट लूंगा हु परफॉर्म बेटर, है ना? 5 टेस्ट लिया मैंने, तो उसका एवरेज निकालेंगे ना? नहीं, एवरेज. तो जिसका एवरेज ज्यादा रहेगा ही इज बेटर बैट्समैन. ऐसा नहीं कि ज्यादा गुड लुकिंग है, ये ज्यादा फैशनेबल है, ये अच्छा, ऐसा नहीं ना? नो. तो थिंग इज दैट यू हैव टू फाइंड द एवरेज. करेक्ट. एवरेज के बाद कुछ और डिटेल में आता है इन स्टैटिस्टिक्स, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट? हु इज मोर कंसिस्टेंट? हु इज मोर कंसिस्टेंट, विराट कोहली और रोहित शर्मा? अच्छा, हु इज मोर कंसिस्टेंट? विराट कोहली. हु इज टू मोर कंसिस्टेंट? वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़. द्रविड़ was more consistent and Viraj Sehwag was not that much. हाँ. Anyway, वो दूसरा टॉपिक हो जाएगा वेरिएंस का. विल नॉट गो देयर. DIN data. Understood this? What is data sufficiency? दो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा. बेस्ड ऑन दैट
whether we are able to get the answer or not. We don't have to solve. We don't have to, whether we have to just figure it out. Question रहेगा ऐसे, suppose first statement a plus b is equal to 10, okay, and a minus b equals to 2, right? So question है, we can find a and b. First option A, using only A, using only A. सेकंड वाला रहेगा using only B. थर्ड वाला रहेगा using both. D वाला रहेगा either A और B. तो बताओ ऑप्शन A B C D, A एंड B दिया ऐसे. कोई मैथ्स एंड फिजिक्स वाला है यहाँ पे? मैथ्स एंड फिजिक्स, इंजीनियरिंग, हाँ PSC फिजिक्स में, इंजीनियरिंग, कोई इंजीनियर नहीं है? अरे बाप रे, एक समय रहता था पूरा क्लास में 75% इंजीनियर होते थे. सच में बता रहा हूँ, 2012-13 में 75% इंजीनियर होते थे. उनका पत्ता ही, पंख ही काट दिया गया, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है. दे शुड स्कोर मैक्सिमम मार्क्स यहाँ था एट दैट टाइम 2011 के आसपास में. तो इट वाज नॉट क्वालिफाइंग. यहाँ से भी यू कुड अटेंड द मेरिट. मैक्सिमम लोग यहाँ से 200 में से दे शुड स्कोर 170 180, यहाँ से 70-80 लाते थे, 50 लाते थे, हो जाता ना. फिर आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले मोर्चा निकाल लिए दिल्ली में, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, वी वांट जस्टिस, है ना. जस्टिस के चक्कर में बोला कि ठीक है तुम लोग ज्यादा उड़ रहे हो, इनका पंख काटो, है ना. अभी वही हाल है इस साल. पिछले साल सी सेट जो उन्होंने पूछा ना, तो आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले वैसे भी नहीं कर पाएंगे. वही क्वेश्चन उन्हें इतना टफ कर दिया कि उनको स्कोर करना 33% आउट ऑफ 267 ही स्कोर करना लाले पड़ गए. उसी क्वेश्चन को इतना टफ कर दिया. तो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? कोई भी बता सकता है? बोथ करेक्ट आंसर. तो अपने को सॉल्व नहीं करना है, अपने को जस्ट ये देखना है कि यूजिंग बोथ, यस और नो. साइमल्टेनियस इक्वेशन याद है ना, तो दोनों को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, है ना. अकेले से यहाँ से मिल सकता है? नहीं मिल सकता है, यहाँ से नहीं. सो व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज व्हाट डेटा सफिशिएंसी. दिस टाइप क्वेश्चंस आर डेटा, whether these two are sufficient or not. Understood? Anyway, so this is pure maths. This you will find it much easier. ये भी आपको easy लगेगा. यहाँ पे फिर से थोड़ा सा मैथ आ जाएगा. Which maths? परसेंटेज आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, एंड रेशो आ जाएगा. What? रेशो. So these two topics are related to maths. बाकी मैथ्स है नहीं. Okay. Now ये in English we come across 40 questions roughly, right? और roughly यहाँ पे 40 questions आ जाता है. So out of 80 questions, 40 is from English. I hope your English must be up to the mark, right? 40 में से अगर you get 20 questions right, कितने? 20. यहाँ से अगर आपको 20 क्वेश्चन राइट मिल जाते हैं, आउट ऑफ 40 आपको 7 क्वेश्चन राइट आने हैं. तो ये आ जाएगा 27 क्वेश्चंस आपका राइट. आउट ऑफ 80 इफ यू गेट 27 क्वेश्चंस राइट, तो आपका काम बन जाएगा, है ना. लेकिन अब व्हाट इज प्रॉब्लम विद द इंग्लिश? इंग्लिश का लेक्चर हुआ या नहीं हुआ? हुआ, ऐसे ही. ओके, ऐसे इस टॉपिक पे नहीं हुआ. इसमें अब क्या करने लगे हैं, पूरा 20 लाइन का एक पैसेज देंगे, उसमें एक क्वेश्चन देंगे. पहले क्या होता था, 10-12 साल पहले एक पैसेज दिया, 3-4 क्वेश्चन पूछ रहे थे एक ही पैसेज पे. अब क्या करते हैं, एक पैसेज पे एक क्वेश्चन, एक पैसेज पे. तो इट इज बिकम इजी और टफ, टाइम कंज्यूमिंग. दैट्स द थिंग, राइट. बाय द टाइम फर्स्ट वाला पढ़े, एंड तक आते आते भूल गया कि पहले वाला क्या पढ़ा था, राइट. एंड सेंटेंस, वर्ड्स एंड
वोकैबुलरी भी ऐसा रहेगा कि समथिंग यू विल टेक टाइम, अदरवाइज देख लो। अब तो इंग्लिश भी इतना इजी नहीं है ना। बेटर ये है जनरल मेंटल एबिलिटी, राइट, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। समहाउ स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी आपको कि देयर आर मेनी क्वेश्चन जिसको आपको छोड़ना ही है। एज फॉर आर्ट्स एंड कॉमर्स बैकग्राउंड, साइंस वालों को भी कभी कभी छोड़ना पड़ता है, जो प्योर मैथ्स वाले रहते हैं, when they have to leave the questions, right? So you have to plan that कि some question you are going to leave, right? उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है ना, करेक्ट। तो ऐसे प्लान करोगे तो यू कैन क्रैक दैट। और कुछ क्वेश्चन हमेशा करना है, some questions you have to do that. Apart from that, you cannot give more than 2.5 minutes to one question. एक क्वेश्चन को 2.5 मिनट से ज्यादा नहीं देना, या 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं देना, या फिर टू एंड हाफ भी होगा, बिकॉज एवरी क्वेश्चन रिक्वायर 1.5 मिनट। तो ज्यादा से ज्यादा आप एक्स्ट्रा दे दो। यू आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट ऑल द 80 क्वेश्चंस। आप समझ लो कि आपने 60 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, 20 करने नहीं है, राइट। 60 में से आपको 30 अगर राइट आ जाता है, दैट्स बेटर क्वालिफाइंग के लिए। लेकिन मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आप ये तैयारी करते हो, है ना, आपको काम तो आएगा। मैथ्स का यूज आता है यूपीएससी में, जो जैसे आईपीएस बन गया, कोई आईएएस बन गया, तो उसको मैथ्स का यूज आता है नहीं आता? आता होगा। हाँ, कहीं न कहीं यूज होता होगा ना। चलो, वो थोड़ा सा डिस्कस करना मुश्किल होगा। बात वही हो गई है ना, कि शादी मंडप में गए नहीं, शादी के मंडप में गए नहीं तो अपने को पता नहीं है, वहां पे गए नहीं तो अपने को कैसे पता है ना। बने होते तो पता चलता था कि यूज होता है या नहीं होता है। सो व्हाट आर द टॉपिक्स इन बेसिक न्यूमरेसी? व्हाट आर द टॉपिक्स इन, क्या क्या टॉपिक्स हो जाता है, द टॉपिक्स दैट यू स्टडीड अप टू 10th स्टैंडर्ड? कौन कौन सा टॉपिक था? ज्योमेट्री नहीं पूछते लोग, मेंसुरेशन नहीं पूछते। व्हाट इज मेंसुरेशन? एरिया, वॉल्यूम, क्यूब, क्यूबॉइड, सरफेस एरिया, है ना, ऑल दोस थिंग्स याद आता है, नॉट दैट मच, लिटिल बिट, है ना। व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? मस्त क्लास है ये। अच्छा, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये 10-12 साल हो गए, आप पिछले जन्म की बातें डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। अब तो ऐसे ही लगता होगा। ये बोर्ड क्या रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है? हाँ, रेक्टेंगल ना। व्हाट इज स्क्वायर? ऑल साइड्स आर इक्वल। ये मैं ऐसे बना देता हूँ, और ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। ये रेक्टेंगल है क्या, ये स्क्वायर है क्या? इसको क्या बोलोगे फिर? ये रॉन्ग, हाँ, ऐसा भी कुछ होता है ना। एरिया तो, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर? साइड स्क्वायर, राइट, एस इंटू एस, साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? ये रेडियस होता है ना। एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और क्या पूछूं मैं? ट्रायंगल, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल? ये बेस है और ये हाइट है। एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, राइट, ऐसे ही कुछ था। और क्या है यहाँ पे? व्हाट इज, ये रूम है ना, इसका वॉल्यूम क्या होगा? एलबीएस, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यूज में आता है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा, है ना। मैथ आपके आसपास में सब जगह पे है, राइट। आपके जैसे ये टाइल्स दिख रहा है, ये टाइल्स है ना, ये कितना स्क्वायर फीट का टाइल होगा? आप देख लो नीचे, एक टाइल का साइड कितना होगा? 1 मीटर होगा? कितना होगा? कितना लग रहा है अप्रोक्सीमेटली?
50 सेंटीमीटर। अब बताओ ये टाइल्स का, मुझे जस्ट बताओ कि इसका साइड कितना होगा। तो और कोई आंसर? आप बताओ ये जो साइड है ना, ये कितना फुट होगा? यहाँ से यहाँ तक कितना फुट होगा, आप बताओ। 2 फीट। आप 2 फीट। आप 50 सेंटीमीटर आपने बताया ना, वो गलत था। और 50 सेंटीमीटर तो अब बताओ। हाँ, 50। आप बताओ, कोई आइडिया? 1 मीटर, आधा मीटर, 2 मीटर? हाँ, 50 क्या सेंटीमीटर? देख रहे हो? विनोद उधर है, उसका नाम विनोद है ना? देख रहे हो विनोद? हैं? अच्छा, इसका लेंथ कितना होगा इसका? हाँ, तो 10 सेंटीमीटर है ना? इसी से माप लें इसे। मान लो ये 10 हुआ। 10 सेंटीमीटर, 1, 2, 3 बार हो रहा है। स्केल है आपके पास? नहीं है स्केल? है नहीं लाए? लाओ। ये कितना सेंटीमीटर है? ये 15 सेंटीमीटर है ना? तो ऑलमोस्ट ये 12 सेंटीमीटर दिख रहा है मेरे ख्याल से। 1.5 है ना? 45 सेंटीमीटर के आसपास होगा, जो मैं अप्रोक्सीमेट कर लिया था। ये 1.5 फीट है। कितना? 1.5 फीट, 2 फीट भी नहीं है। आपके सामने है। हाँ, आपका रूम है ना? वो आके एस्टिमेट करके गया, सर यहाँ पे 200 टाइल्स लगेगा। कितना? 200 टाइल्स। तो आपने बोला ठीक है, कितना कॉस्ट होगा? बोला सर 10 लाख होगा। आपने चेक फाड़ के दे दिया। आपको पता ही नहीं है क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। आपका दिमाग ही नहीं, सॉरी, क्या क्या बोलेंगे? यू डोंट हैव द आइडिया, उस बारे में आपको जानकारी नहीं है, एप्टीट्यूड ही नहीं है आपका। क्या करोगे आप बताओ? यू आर द ऑफिसर है ना, और कहीं आपके अंडर में एक हॉस्पिटल बन रहा है ना? उसका सब लोग ये प्लान लेके आ गए, ये इतना होगा, इतना होगा, इतना खर्चा आएगा, है ना? यू आर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आप सैंक्शन कर दोगे, लेके जा। ऐसे ही करोगे? कस्टम हाउस, कस्टम एजेंट बन गए। बहुत बड़ा कंटेनर आया हुआ है ना? उसमें सब रॉड्स हैं, कई सारे रॉड्स हैं, या फिर कई सारे मटेरियल्स उसमें। उसका डेंसिटी कितना है, वॉल्यूम कितना है, ये कितना है, उन्होंने बता दिया। आप पेपर पे साइन कर दोगे, है ना? क्या करोगे? आपके अंदर फाइनल अप्रूवल के लिए तो आपके पास आने वाला है ना? और गवर्नमेंट पकड़ेगा गला तो पहले आपका पकड़ेगा, साइन आपने किया था। तो क्या करोगे आप? कुछ तो पता रहना चाहिए। अगर क्लर्क नहीं बनते हो, क्लर्क में तो कैलकुलेशन ज्यादा रहता है ना, एसएससी में क्लर्क हो तो आप ऑफिसर बनते हो, डिसीजन मेकर तो आप हो। तो आप ऐसा बोलोगे हम थोड़ी गए थे, तो साइन किए थे। क्या करोगे? ये देखो, छोटा सा एग्जांपल है मैथ्स, है ना? स्मॉल एग्जांपल कि कितना टाइल्स लगेगा, कितना नहीं लगेगा। आप लोगों को एस्टिमेशन भी नहीं रहता। मैं पूछा कभी कभी, ये रूम की हाइट कितना? बोले सर 10 मीटर होगा। ऐसी दुनिया चल रही है। शॉर्ट पे शॉर्ट देखते हैं, रील्स पे देखते हैं, यार सब कुछ है। दे डोंट हैव द एस्टिमेशन अबाउट एनीथिंग। और जो यूपीसी पूछ रहा है दोस्त ना, नंबर का एस्टिमेशन, सब एस्टिमेशन पे ही काम चल रहा है। यू डोंट हैव द प्रॉपर आइडिया एनीथिंग। जैसे पूछा कि इसका लेंथ क्या होगा, इस बेंच का लेंथ कितना होगा? कोई आइडिया? आप मत बताना जानते हो, है ना? आपको थोड़ा सा है, किसका कितना लेंथ होगा बताओ इसका। कोई आइडिया नहीं है, बस इतना कि आपका वेट कितना है ना? वेट भी पता होगा तो पता होगा शायद से, नहीं तो भी पता नहीं है। नंबर से सब लोग भाग रहे हैं। नो आइडिया। तो आप सोचो कि आप मिलीमीटर सेंटीमीटर पे क्या बात करेंगे, है ना? किलोमीटर
पर आवर, मीटर पर सेकेंड, जब यूनिट्स बिकम मोर डिफिकल्ट तो आप क्या बात कर पाओगे, राइट? तो मेजरमेंट, यूनिट्स एंड कन्वर्जन्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को पता नहीं है। आई नो दैट यू आर गुड एट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड अदर थिंग्स। मैं छोटा छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन आपको, आप खुद नहीं कर पाओगे। कैलकुलेटर दे दूँ तो भी नहीं कर पाओगे। ऐसा ही गिव यू द कैलकुलेटर तो भी वो लोग कैलकुलेटर बोलेगा सिंटैक्स एरर। आप करने जाओगे हो जाएगा सिंटैक्स एरर, यू वोंट बी एबल टू डू दैट। हम्म बोले लेकिन सर सब सब कुछ प्रोग्रामेबल आ गया है, उसमें चेक कर लेंगे, कंप्यूटर में चेक कर लेंगे, ये आ जाएगा, हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपके अंदर खुद भी तो एआई से ही काम करा लेंगे मेरे ख्याल से। आगे चल के यूपीएससी का एग्जाम लेंगे ही नहीं, आईएएस आईपीएस बनाएंगे नहीं, सब एआई डाल देंगे, एआई ही काम करेगा, डिसीजन वही करेगा फिर। नहीं कर तो सकता है ना। एथिक्स का भी उसमें पूरा बना देंगे, ये सारे कंडीशन से, ये सारे कंडीशन सब बना देंगे, क्या नहीं बना सकते एआई से। जो आदमी काम कर सकता है ना, पढ़ लिख के, आपको अगर रट्टा मार के ही जाना है तो उसको भी अंदर फीड कर देंगे। आपकी मेमोरी शॉर्ट है, उनका तो बहुत बड़ा है, जीबी टीबी कितना, टेराबाइट, टेराबाइट कितना होता है? और टेराबाइट से ज्यादा क्या होता है? तो ये जो आपके आसपास की चीजें ना, इसको हैव द अवेयरनेस, ये है क्या, ये पूछ ले भाई। आपका कौन सा फोन है? बोले कितना ये फोन है, कितना मेमोरी है? बोले 256 GB, है ना? अब जीबी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, यूज तो करो ना, डेली बेसिस पे यूज करो, आपको पता ही नहीं है। तो देर इज नो अवेयरनेस इनसाइड यू। कोई भी चीज जो आपके पास आस पास में है, देर इज नो अवेयरनेस, फिर क्या करोगे? यूपीएससी इज ऑल अबाउट द अवेयरनेस, समथिंग अबाउट एवरीथिंग, समथिंग अबाउट ऑलमोस्ट, यू नो समथिंग लिटिल बिट। ये पूरा ब्लैंक भी नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि आप बोल सकते हैं कि आई एम नॉट श्योर, जो मैं बोल रहा हूँ श्योर नहीं, लेकिन ऐसा कुछ एस्टिमेशन यू कैन गिव दैट, राइट? क्योंकि अब दुनिया इतनी बदल चुकी है कि वी डोंट हैव दैट कैपेसिटी कि वी कैन नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, वी कैन नॉट नो एवरीथिंग, बट वी शुड हैव सम बेसिक आइडिया, ये सब होना चाहिए। तो मैथ्स यही करता है, ठीक है? तो आपके पास थोड़ा सा एस्टिमेशन होना चाहिए, होना चाहिए। तो लेकिन थिंग इज दैट ना, यू डोंट हैव टू वरी। आप मैथ्स करोगे ना, नाउ यू आर ग्रोन अप। जो मैं जो आप बच्चों को फिफ्थ सिक्स सेवन लेवल में तीन, सॉरी, जो 10 घंटे में पढ़ाओगे, आप लोग आधे घंटे में उसको सीख लोगे। इतना आपका मैच्योरिटी लेवल आ चुका है, राइट? जो बच्चों को, या फिर आप लोग जब थे तो नंबर सिस्टम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो सब चलता था महीने महीने भर ना। अब आप लोग एक महीने में यू विल अंडरस्टैंड द मेनी टॉपिक्स। So for that, you have to just prepare a little bit. तो बेसिक न्यूमर्सी की चैप्टर में लिख देना फर्स्ट, सो दैट यू अवेयर बेसिक न्यूमर्सी। अगर यूपीसी का पैटर्न देखो ना, वहां पे बेसिक न्यूज एज ए चैप्टर नहीं दिया उन्होंने, जैसे कंपेयरिंग क्वांटिटीज, कंपेयरिंग क्वांटिटीज में एवरीथिंग कम्स। तो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, सेकेंड वन इज एचसीएफ एलसीएम, थर्ड वन इज एवरेज, फोर्थ वन इज रेशो, फिफ्थ वन इज परसेंटेज, परसेंटेज, sixth one is profit loss and discount, profit loss and discount,
Seventh one is simple interest and compound interest. Eighth one is chain rule. Unitary method. You can call it as unitary. It is also called as unitary method. Ninth one, time and work. Tenth one, speed. 11th one, probability. There are three more topics जो कि हम लोग करेंगे. This is about basic unitary. So out of these, how many chapters you know well? Anyone can say, हाँ ये chapter मुझे आता है. You know percentage? You know also averages, right? How to find average? How to find average? If I have to find the average age of this class, so what I have to do here? What is the average age of this class? I will find the age of each and every person. Then I will divide by number of persons, right? If I have to find average height, then each person ka height I have to take. Then I have to add that. Then upon number of people. Yes or no? Average weight, सबका weight हम लोग add up करेंगे. Then divide by number of people. Correct? How to find percentage? How to find percentage? परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं आप बताओ. डिवाइडेड बाय into 100. इतना ही बोलना है. whenever you want to find percentage multiply by yes इतना. इससे सिंपल कुछ नहीं है. to find percent multiply by 100. कौन ऊपर है कौन नीचे that's later on है ना. then which other chapter you know? Profit and loss you know. Profit, loss and discount you know. And if you go to any mall there is always discount or sale is going on. Such a large board SALE sale and people get है ना. चलो right. So give me a time like that. Let's say you went to the shop, okay, and MRP is there. MRP is there rupees 1200 rupees, and he's offering a discount of 30%. Okay, तो आप 500 रुपए का आप उसको कितना नोट दोगे to purchase the bag? दो नोट. और फिर आपको कुछ वापस करेगा या नहीं करेगा? चलो दिस इज द क्वेश्चन फॉर होल ऑफ द क्लास. टेल मी दैट बैग का प्राइस कितना होगा एंड इफ शी गिव्स 1000 का टू नोट्स हाउ मच शी विल रिटर्न. ये तो कर सकते हो या नहीं कर सकते? हाँ 60 रुपीज रिटर्न देगा. कुछ ही लोग कर पा रहे हैं. 3-4 पीपल है ना. एक हाँ 100 की वापस करेगा. ठीक है 150 वापस करेगा. 940 940 इज द एक्चुअल कॉस्ट. तो ये सही बोली ना. 500 का कितना नोट्स. नहीं तो नोट लेके रहेंगे तो पूछेंगे कितना देना है. अगर कितना देना हाउ मच आई हैव टू गिव राइट. अगर डिस्काउंट ऐसे चल रहा है ऐसा नो. मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ कि आपको आइडिया है या नहीं. आपको एस्टिमेशन है कि नहीं कितना नोट देना है. 2 देना है कि 3 देना है. लाइक दैट.
आई सपोज यू वांट टू बाय सम आईफोन, राइट? कितने का? 80,000 का आ रहा है ना? 80,000 का आ रहा है, और उसने आपको सेल किया है 72,000 पे। कितने पे? 72,000 पे सेल किया है, और आपको डिस्काउंट दिया 20%। कितना डिस्काउंट दिया? तो उसका एमआरपी कितना था? ये तो नहीं कर पाओगे आप। द शॉपकीपर, यू वेंट टू बाय सम आईफोन, राइट? और उसने आपको 20% डिस्काउंट दिया, एंड यू बॉट एट रुपीज व्हाट? 72। तो व्हाट इज द रिटेल प्राइस? 24,000 का था रिटेल प्राइस, आपने 72,000 पे किया। हाँ, आएगा मैथ? नहीं आएगा ये अपने काम की चीज नहीं है। व्हाट इज थिंग? इससे ज्यादा होगा कि इससे कम होगा? ये तो पक्का ना? द एमआरपी हैज टू बी मोर देन दिस प्राइस। हाँ, कैसे किया आपने? हाँ, करेक्ट। 20% ऑफ दिस, और फिर इसमें ऐड कर दो। दुनिया भी ऐसे ही करती है, दुनिया ऐसे ही करती है, एंड दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग आंसर। दैट इज परफेक्टली रॉन्ग आंसर, राइट? यही सारा सीखना है। चलो, एनीवे, तब इस समय आप 200 के कितने नोट दोगे फिर? 200 के कितने नोट दोगे उसको? 72,000 है ना? और आपके पास सब 200 के नोट्स हैं, कितने नोट्स दोगे उसको? बोल दो कि बैग दे दो कि भाई इसमें से अपना 72,000 निकाल ले। हाँ, ये करेक्ट है। फोन पे जी, फोन पे जीते, ये बेटर। लाइफ हैज बिकम मच इजियर ना। वेरी नाइस। ठीक है, नाउ अगर उसने डिस्काउंट करके 72,000 मेरे हिसाब से आ रहा था, उसके हिसाब से 84,000 आ गया, तब आप जीपे कर दोगे 84,000? नहीं, हाँ, कुछ तो करोगे आप लोग, है ना? अच्छा, एनीवे, जनरल मेंटल एबिलिटी, व्हाट आर द टॉपिक्स? आपने टॉपिक्स अभी देखा नहीं होगा ना, क्योंकि आपने बुक परचेज ही नहीं किया, लिया नहीं, तो यू डोंट नो द टॉपिक्स, राइट? तो इसमें क्या है? एनालॉजी। फर्स्ट टॉपिक इज, ये सब बहुत इजी है ना? एनालॉजी, क्लासिफिकेशन। थर्ड वन इज दैट सीरीज। फोर्थ वन इज दैट कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। Fifth one, blood relation. Fifth one is the blood relation. Sixth one is ranking. Seventh one is puzzles. Eighth one is cubes and dice. Cubes and dice. Ninth one is direction sense. Direction sense. Tenth one is clock. 11th is calendar. 11th is the calendar. तीसरा, ये सीरीज। सीरीज स्पेलिंग बताऊं क्या? स्पेलिंग यही है ना, सीरीज। करेंगे, जस्ट टॉपिक लिखो। वैसे यूपीएससी में पूछते नहीं है, एनालॉजी क्लासिफिकेशन यूपीएससी में पूछते नहीं है।
देयर आर सम मोर टॉपिक्स, दो तीन टॉपिक यहाँ पे एक्स्ट्रा रहेगा, दो तीन टॉपिक यहाँ पर भी एक्स्ट्रा रहेगा. हाँ, मिसिंग करेक्टनेस, राइट. बुक का नाम क्या है? देखो, द बुक दैट इज फर्स्ट वन, सी सेट जो मैंने आपको दिखाया, राइट. दिस सी सेट बाय अरिहंत पब्लिकेशन. ये पर्टिकुलर जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन भी है इसमें, राइट. तो आप नेक्स्ट टाइम इसका 2-3 इयर्स का पेपर देख के आना. इस क्वेश्चंस का आप पिछले 2-3 साल का क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन क्या करके आओगे, देख के आओगे. ऑन एनी गिवन डे अगर मैं यूपीएससी का कोई क्वेश्चन दूं, आउट ऑफ 80 क्वेश्चन ना 5 to 7 क्वेश्चन आप यूं सॉल्व कर लो विदाउट एनी प्रिपरेशन. यू कैन सॉल्व 5 to 6 क्वेश्चन मैथ के ही. आई एम टेलिंग अबाउट मैथ. So there are certain questions that are very easy without preparation. 5 to 6 question आप solve कर लोगे, right? And if you be through with that, then 10 to 12 questions आप और भी solve कर सकते हो. Okay? Then there are certain questions that you cannot solve ever, है ना? आर्ट्स वाले अपने में होता है, साइंस वाले कर लेंगे, आर्ट्स वाले नहीं कर सकते because it requires lots of understanding. ऐसे करके या फिर उतना पढ़ाई करो तब करो, है ना, like that. So some questions has to be left out. उसको आपको लीव करना है. Now CSAT second one is that जो सब बहुत फेमस बुक है, that is quantitative aptitude. Quantitative aptitude by Dr. R.S. Agrawal. Third one is that fast track. Fast track Arihant publication. Arihant public, same publication. Fourth one is that क्विकर मैथ्स. लेकिन आप ये बुक मत लेना, ठीक है? क्विकर मैथ्स मत लेना, ये लेना ही मत, क्योंकि हर क्वेश्चन का 3-3 शॉर्टकट दिया गया है. 3-3 कितने फॉर्मूले लर्न करोगे? इट्स बियॉन्ड रीच. मैं ये बोल देता हूँ www.indiabix.com. आप यहाँ पे जा सकते हो, आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा. www.indiabix.com, right? So on a daily basis you can learn more questions. You have to work more on the fundamental. What are the, because you have forgotten most of the things, right? आप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि you have forgotten most of them, but thing is that you will not take that much time. Now you have grown up, and you have been, all of you are graduate now, no? So you can learn the things much faster, right? Now what are the type of question they ask in UPSC, right? It's so fundamental, फिर भी लोगों को नहीं आता है ना? So let's say age income is 25%, 20% less than wage income, less than, लिख लो क्वेश्चन, राइट? इफ यू वांट to write it. If age income is 20% less than wage income, if age income is 20% less than 20% less than wage income, then how much percent is wage income more than age income? Then how much percent is wage income more than age income?
व्हाट यू से, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? ए का इनकम कितना कम है? 20%, तो बी कितना ज्यादा रहेगा? 20%। ऑब्वियस आंसर है ना? यस और नो? ए इज लेस बाय 20%, तो बी कितना ज्यादा रहेगा? 20%। ऑब्वियस आंसर। एक ऑप्शन दिया भी रहता है वहां पे 20%, और प्रॉब्ली फर्स्ट वाला ही रहता है, और देखते हैं लोग टिक कर देते हैं, और ऐसे लोग जाल बिछा के रखे हैं, है ना? जो 20% डालेगा उसको जाल लेंगे और फेंक देंगे बाहर, जाओ यू डोंट डिजर्व, राइट? ऐसे होंगे। दूसरा क्वेश्चन है ना, लिखो क्वेश्चन, लिखो, है ना? क्या लिखोगे? विनोद, ये विनोद है ना, ये अलग विनोद। विनोद सोल्ड टू वॉचेस, विनोद सोल्ड टू वॉचेस फॉर रुपीज, विनोद सोल्ड टू वॉचेस फॉर रुपीज 990 each. Vinod sold two watches for rupees 990 each. On the first, comma, on the first, he obtained 10% profit. On the first, he obtained 10% profit. But on the second, he incurred a loss of 10%. Incurred a loss of 10%. But on the second, he incurred a loss of 10%. What is his overall profit or loss percent? What is his overall profit or loss percent in the whole transaction? इसको सेल किया कितने पे? 990 पे, प्रॉफिट कितना? 10%। इसको सेल किया 990 पे, लॉस कितना? सो इन द होल थिंग व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट? क्या रहेगा आंसर? हिम्मत जुटाओ जरा, अलग अलग। एक ऑप्शन दिया रहेगा नो प्रॉफिट नो लॉस, और फर्स्ट वाला रहेगा नहीं, और हिम्मत नहीं है। जो ऑब्वियस लग रहा है ना, ऑब्वियस जो लग रहा है वो है नहीं, है कि नहीं? तो इसमें क्या सोचने का, इसमें तो सोचने के लिए है ही नहीं, जस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस। यस नो? ये लोग डर रहे हैं, 10% लॉस हुआ, करेक्ट? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला। हाँ, आंसर? अरे इस टाइप की क्वेश्चन, मैं कल क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आज का कल मेरा काम है कल क्वेश्चन देना, इस ओरिएंटेशन लेक्चर ना। आई एम नॉट गोइंग टू टीच एनी टॉपिक टुडे, करेक्ट? अच्छा, ये क्वेश्चन, मिस्टर विनोद, राइट, went from Mumbai to Pune, went from Mumbai to Pune at a speed of 60 kmph, went from Mumbai to Pune at a speed of, at a speed 60 kmph. What is kmph? Okay. And returned from Pune to Mumbai. And returned from Pune to Mumbai at a speed, at speed 40 kmph. 40 kmph. Find his overall, find his average speed during the entire journey. Find his average speed during the entire journey.
फाइंड हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? यार आप लोग तो पहले से डर गए। अरे कभी कभी राइट भी हो सकते हैं, इसमें क्या है ना? इसमें क्या सोचना है? या 60 से आया 40 से, 60 + 40, 100/2, 50। एक ऑप्शन दिया रहेगा 50, और आप क्या करोगे? से। तो आपको लगेगा मैंने कर लिया है। करेक्ट। ऐसे कुछ। क्वेश्चन नंबर 4 है ना? लिखो, ए कैन डू, ये हो गया परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, और क्या हो गया? स्पीड डिस्टेंस। हाँ, ए कैन डू, ए से मान लो अमित, है ना? अमित कैन डू अ वर्क इन 10 days। अमित कैन डू अ वर्क इन 10 days, एंड विनोद कैन डू अ वर्क इन 15 days, and Vinod can do the same work. Vinod can do the same work in 15 days. Amit can do a work in 10 days, and Vinod can do the same work in 15 days. If they start working together, in how many days they can complete the work? If they start working together, in how many days will they complete the work? Okay, कोई आंसर? कुछ तो बोलो। अच्छा, अरे रॉन्ग तो रॉन्ग, उसमें क्या है? कितना? कोई तो 4-5 आंसर मुझे दे दो, थोड़ा तसल्ली हो जाए। ऑप्शन आप लोग दोगे, मैं क्या ऑप्शन दूँ? ऑप्शन आप, जो आपको लगता है दैट इज ऑप्शन। किसी का एक का राइट रहेगा। कितना? 12 days। ये हिम्मत वाला है, समझो। देखो, दुनिया उसी की है जिसके पास हिम्मत है भाई। तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन हिम्मत नहीं है, तो गए। कबीरदास ने कैसे बोला है? मैं बख्शा हूँ, होता है। महाभारत में नहीं लिखा है, तुमने महाभारत पढ़ा है? हाँ, 12.5। दूसरा क्या है? 12 days। तीसरा कोई और? किसी को कुछ क्या लगता है बता दो, जो लगता है बता दो कि इतना दिन लगेगा उनको, एक एस्टिमेट, मतलब क्लोज बाय। हाँ, 10 days। ओके। और चौथा? हाँ, 8 days। फिफ्थ वाला है ना? ठीक। गूगल सर्च कर लिया? तो 10 days की, 6 days किसने बोला? क्यों किया यूनिट में? हाँ 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 हाँ। क्यों करेंगे इन्वर्स? तो आप यूनिटरी मेथड भी नहीं जानते और ये मेथड भी नहीं जानते, जैसे आपने सर्च कर लिया है ना? ये मत क्लास में बैठ के ही मत करो। जब मैं बोलूंगा तब कर लेना। व्हेन आई से, देन यू डू दैट। करेक्ट। मैं बोलूंगा कि ये सर्च करो, ये सर्च करो। राइट, नहीं तो अब मैं क्या समझूंगा, जानते हैं कि सर्च में आता है। तो जो ऑब्वियस क्वेश्चन मैं पूछने वाला रहूंगा, फिर मैं पूछूंगा नहीं। जब मुझे लग जाएगा अच्छा ये इसको तो आता है,
So certain times na I judge the person. So I ask the question so that you just think more on that. फिर मैं पूछना बंद कर दूंगा. इसलिए जो ये रॉन्ग इंप्रेशन हो जाएगा ना, यू आर क्रिएटिंग अ रॉन्ग इंप्रेशन अबाउट योर सेल्फ, जो कि है नहीं. तो यू डोंट नो यूनिटरी मेथड एज वेल. ऐसा भी हो जाएगा कि किसमें यूनिटरी मेथड काम नहीं करता. अगर यूनिटरी मेथड काम करता है तो मैं क्या. चलो अब यूनिटरी मेथड आपने बोल दिया तो पूछ ही लेता एक क्वेश्चन. ये क्या क्वेश्चन था? अमित, हाँ, अमित कैन डू द वर्क इन 10 days, बी विनोद कैन डू द वर्क इन 15 days. और कोई मार्कर दिख रहा है आप? नहीं है? ओके, सो लेट्स से ओके यूनिटरी मेथड, राइट. यहाँ पे पेन है और यहाँ पे कॉस्ट है. 20 पेन का कॉस्ट इज 30 रुपीज. 20 पेन का कॉस्ट इज, so what is the cost of 30 pens? और दूसरा क्या जानते हो? सेम क्वेश्चन. 20 men can do the work in 30 days. Look here. अच्छा लिख लो क्वेश्चन आप. हाँ, the cost of 20 pen. क्वेश्चन नंबर 5 A and B करके लिखना. This is the A and this is the B part. क्वेश्चन नंबर 5 का A part. The cost of 20 pens is rupees 30. The cost of 20 pens is rupees 30. What is the cost of 30 pens? What is the cost of such 30 pens? What is the cost of such 30 pens? Right? Next question. Question number 5 का B. If 20 men can do a work, if 20 men can do a work in 30 days, if 20 men can do a work in 30 days, then 30 men will take how many days to do the same work? Then 30 men will take how many days to do the same work? Understood? ओके, तो ये ऐसे सारे क्वेश्चंस है ना. और कुछ क्वेश्चन पूछूं मैं? लिखो. On a road, there are three signals. On a road there are three signals. The first signal becomes red after every 10 minutes. The first signal becomes red after every 10 minutes. The second signal becomes red after every 15 minutes. And the third signal becomes red after every 36 minutes. After every 36 minutes. Full stop. At 10 a.m., all of them became red together. At 10 a.m., all of them became red together.
full stop. At what next time? Next at what time they will be read together again? Next at what time all of them will be read together again? Next at what time all of them will become read together again? और क्या क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आपने देखा है कभी? किया, देखा नहीं तो किया नहीं होगा। हाँ, देखा नहीं। आपको कुछ याद है? नहीं, भूल गया। चलो कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर मुझको याद रहेगा। ओके, मैं थोड़ा बैठ जाऊँ, है ना, 1 घंटे से पढ़ा हूँ। मैं इसमें मैं इसमें अच्छा है कि मैं क्वेश्चन देकर के बैठ सकता हूँ। अच्छा, आप आंसर मत बताना, ठीक है, दोनों जन और तीनों जन आंसर मत बताना, अगर आता है तो लेट देम डिस्कस। इन अ बर्थडे पार्टी, इन अ बर्थडे पार्टी there are 10 people, there are, and all of them shake hand with each other. In a birthday party there are 10 people और सब लोग एक दूसरे दूसरे से क्या करते हैं, हैंड शेक्स करते हैं। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स दैट हैपेंड इन द पार्टी। 10 लोग हैं और सब लोग एक दूसरे से हैंड शेक्स करते हैं, तो टोटल कितना हैंड शेक्स होगा? है ना, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 90। आंसर मत बताना, अगर आप लोगों को याद है, आंसर याद है मत बताना, है ना, आंसर याद रहता है इसका। और सोचो, बताओ, ये क्वेश्चन इसलिए दे रहा है ना कि आप स्टार्ट थिंकिंग, यू स्टार्ट, अच्छा हाँ ये चीज है, ये चीज बताना बताना है ना। मेथड याद है आपको? ओके, फर्स्ट वाला मेथड ना, बस भाई एक ही मेथड याद है, चलो। 19, फर्स्ट ऑप्शन क्या था? 90, सेकंड वाला क्या हो गया? 99, थर्ड वाला 100, नहीं, फोर्थ वाला 81, है ना। ऐसे लोग एज दे कीप ऑन थिंकिंग, ऐसे ऐसे इनको मिलते जाते। अभी आईसीसी का वर्ल्ड कप हुआ था 55। कैसे कैसे किया आपने? हाँ, थोड़ा सा ये हो गया। ये यही चीज मैं चाहता हूँ, जिसने किया ना, आपने कभी क्वेश्चन देखा ये? देखा है? अच्छा, इस अब, हाँ हाँ, आपके भाई की फाउंडेशन में, मुलुंड में, अच्छा ठीक है। ये देखो क्वेश्चन मेरा फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है, जानते हो। मैं चाहता कि यू स्टार्ट थिंकिंग। इसने एक गलती कर दिया। 10 लोग हैं ना, देखो 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। ये जो है ना, खुद से हैंडशेक नहीं करेगा, कितने के साथ हैंडशेक करेगा? बस वही, फर्स्ट वाला कैन नॉट हैंडशेक विद द 10 पीपल, 10 हटा दो, 45, 45 इज द करेक्ट। मैं चाहता हूं ना कि स्टार्ट थिंकिंग। देखो यूपीएससी में कोई कोई एग्जाम दो, इट्स नॉट समथिंग कि आपको सब क्वेश्चन पता रहेगा।
बट अगर आप ट्राई करो ना तो मे बी पॉसिबल आपको आंसर मिल जाएगा। तो जो आर्ट्स बैकग्राउंड का ये जो ना इनर्सिया है ना, वो सोचना नहीं चाहते। साइंस वालों को कोई भी क्वेश्चन दो ना, पता नहीं क्या उनके अंदर कीड़ा रहता है, जो सोचेंगे जरूर, इधर से नहीं, इधर से नहीं, इधर से नहीं, इधर से कुछ ना कुछ। लेकिन आर्ट्स वाले हाथ हाथ धर के बैठ जाते हैं, क्योंकि यू हैव लेफ्ट दैट मेनी इयर्स बैक ना, वो एप्टीट्यूड ही नहीं रहा कि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से, है ना, फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट। लेकिन इफ यू थिंक, तो कई बार आई हैव सीन इट मेनी टाइम्स ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जो आर्ट्स बैकग्राउंड के टाइप के रहते हैं। यू डोंट नीड एनी फार्मूला, यू डोंट नीड एनी स्पेशल ट्रेनिंग फॉर दैट, इट्स जस्ट टू थिंक एंड यू कैन गेट दैट आंसर। ये समझाइए। द फर्स्ट पर्सन विल शेक हैंड विथ ऑल पीपल, 9, right? And the next person already, if he shakes hand with all of 10, all of 9, that means सब 9 ने भी उसके साथ हैंड शेक किया। yes or no? He goes out of the party. The second person, he cannot do handshake with himself, है ना, करेगा? So he will do with the rest of the 8 people. He also goes out the, and सब 8 लोगों ने उसके साथ हैंडशेक किया। Then this with, then 6, 5, 4, 3, 2, इसने इसके साथ ऑलरेडी सब लोग हैंडशेक कर चुके थे ना, ये इन दोनों के साथ में करेगा, और इन दोनों ने इसके साथ किया, तो ना ये इसके साथ करेगा। इफ यू ऐड 9 + 1 10, 8 + 2 10, 7 + 3 10, 6 + 4 10, 40 हो गया, एंड दिस इज 45, है कि नहीं? ऐसे कर सकते हैं। या फिर शॉर्टकट है इसका, 10 × 9/2, 10 इंटू क्या आ जाएगा, 45। इफ देयर आर 20 पीपल, तो आंसर क्या होगा? इफ देयर आर 20 पीपल, तो बोलेंगे सर 45 का डबल करते थे, 90 आ जाएगा। यूनिटरी मेथड नहीं है भाई, सब जगह यूनिटरी मेथड ही काम करो, एक ही मेथड सब जगह अप्लाई करते रहो, है ना। अगर 20 पीपल आर देयर, तो क्या लिखोगे, 20 × 19/2, 2 10 जा, तो आज सर आ जाएगा क्या? लेकिन लोग सर 10 के साथ में हैंडशेक 45 हो रहा है, तो 20 नंबर डबल हो गए, तो हैंडशेक भी डबल हो जाएगा, है ना। ये मैथ है बेटा, क्या है ये? मैथ। मैं एक बच्चे से पूछा, आप एक आंख से 3 किलोमीटर देखते हो, और दो आंख से बोला सर 6 किलोमीटर। हाँ, तो इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। हाँ, मैथमेटिकली रॉन्ग थोड़ी था, समझ आ रहे हैं? 1 घंटे में 10 कपड़े सुखा सकते हो, है ना, तो 20 कपड़े सुखाने के लिए कितने घंटे लगेंगे? हाँ, सब जगह मैथ अप्लाई करते रहोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। तो थिंग इज दैट मैथ कहाँ अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, आपके पास तो थोड़ा सा रहना चाहिए, राइट। कैलकुलेटर दे दो, करो आप। इसमें क्या करोगे, कैलकुलेटर लेकर के क्या करोगे बताओ? एनीवे, सो ये वाला मैंने क्वेश्चन दे दिया था। ऐसे थिंकिंग, आपकी थिंकिंग क्या है ना, ये मैटर करता है, हाउ वेल यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, हाउ वेल यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। जैसे एक मेरा और क्वेश्चन है, मेरे लेफ्ट हैंड में, है ना, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड में 3 एप्पल्स एंड 4 ऑरेंजेस है, कितने? और यहाँ पे 4 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंजेस है। इन माई लेफ्ट हैंड 3 एप्पल्स एंड 4 ऑरेंजेस, इन right hand 4 apples and 3 oranges. So what do I have? What do I have? बोलोगे 7 apples 10 oranges, बोलोगे 14 fruits, है ना। ये सब, तो ये सब तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सब तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये तो हो सकता है आपके पास है, आप खाए नहीं, तो आप भूखे नहीं हो, है ना। लेकर के कर क्या रहे हो, या तो खाने की चीजें खा डालो, नहीं चीजें खा डालो। लेकिन ये सब है, तो ये सब बताने के बावजूद भी यू हैव टू गेट द इंफॉर्मेशन आउट ऑफ दैट, उसमें से इंफॉर्मेशन निकालो कि आई हैव बिगर हैंड्स। अगर एक हाथ में 7 फ्रूट्स मैं पकड़ रहा हूँ, इसका मतलब क्या, मेरे पास छोटा हाथ है? नहीं, बड़ा हाथ। आई हैव बिगर हैंड, नहीं।
तो इसको बोलते इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन से आपने क्या डिड्यूस किया। जैसे क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, एक ऐसा इंटरव्यू का पैनल था, राइट। इन अ पैनल ऑफ इंटरव्यू, है ना, सब लोग बैठे थे। द कैंडिडेट कम्स, एस्पिरेंट कम, कैंडिडेट आता है तो बोले सिट डाउन प्लीज। कैंडिडेट बैठ जाता है पैनल के सामने, डेस्क है यहाँ पे। तो उसने, चेयरपर्सन ने बेल मारा, राइट। ट्यून आता है, बोला कि ब्रिंग द कॉफी। कॉफी ला करके कैंडिडेट के सामने रख देता है, राइट। तो फिर चेयरपर्सन आज, व्हाट इज बिफोर यू, व्हाट इज बिफोर यू। ये आदमी देख रहा है, ये कॉफी ला के रखा है, आंसर क्वेश्चन, बोला सर टी, एंड ही गॉट सेलेक्टेड। ला के रखा है कॉफी, पूछ रहा है क्या आपके सामने, यू नो, व्हाट इज बिफोर यू, व्हाट इज बिफोर यू, बोला सर टी, एंड ही गॉट सेलेक्टेड। क्यों जानते हो? यस टी, यू, यू के पहले क्या है, टी है। जब देख रहा है कि कॉफी रखा है फिर भी पूछ रहा है, दैट मींस ही इज नॉट आस्किंग दैट। नहीं समझा? तो यूपीसी इस तरीके से चलता है। समझ आ रहा है ये क्या दिया गया है क्या नहीं, है ना, भरमाया जाएगा आपको, आपको भरमाएंगे ना। अगर उसके भ्रम में आ गए तो जाल बिछा के रखा है लोगों ने, है ना, कि हाउ मेनी पीपल अपीयर फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के लिए कितने लोग अपीयर करते हैं एवरी ईयर? 10 लाख ऑलमोस्ट। चलो हम लोग 10 लाख मान लेते हैं, है ना। 10 लाख में फिर मेंस कितने लिखते हैं? मेंस कितने लिखने वाले रहते हैं? 10 लाख से अगर प्रीलिम अपीयर करते हैं तो मेंस कितने लोग लिखते हैं? हाँ, ये सब आपको पता नहीं है? कुछ डेटा निकाल कर रखो यार। मैं सोच रहा हूँ 30,000 कितने, व्हाट आई थिंक, मान लो मैं, सब कोई रॉन्ग ही है, मैं भी हूँ, आप भी, सब कोई रॉन्ग ही है। हाँ, अपने मन का सब बोलना है। तो 30,000, लेट्स से 30,000, तो कितने लोग बाहर चले गए? 10 लाख अपीयर किए, और 30,000 अगर मेंस लिखते हैं तो कितने लोग बाहर गए? 9 लाख। सो प्रीलिम इज व्हाट, इज नॉट द सिलेक्शन क्राइटेरिया, इट इज द रिजेक्शन क्राइटेरिया। कितने लोगों को बाहर करना है, नहीं समझे? प्रीलिम इज नॉट द सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसमें से निकालना है यार, ये लोग, हाँ, भगाओ इनको बोले यहाँ से। नहीं समझ में आ रहा है? आप जो मेंस लिखेंगे फिर उसमें से इंटरव्यू लिया जाएगा ना। एक, अगर एक कैंडिडेट सिलेक्ट होता है तो उसके पहले कितने लोग का इंटरव्यू, मतलब कितने लोग का इंटरव्यू लेकर के एक को सिलेक्ट करेंगे, और रेशो जानते हो कि 10 के इंटरव्यू में एक को सिलेक्ट करना है। रेशो नहीं पता है तो? तीन में से, फालतू आदमी यार। तो यूपीसी, यूपीसी किस काम का हो गया, 3 में से एक को सिलेक्ट करना है तो उस हिसाब से, अगर उस हिसाब से देखो, केवल 3,000 का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू 1,000 को सेलेक्ट करना है, हाँ, तो 3,000 का इंटरव्यू होगा। हाँ, हाँ। ऐसा है, तो यही होगा। तो 3,000 फाइनल कॉल के लिए आते हैं, इंटरव्यू के लिए। और रेशो देख लो ऐसे करके। तो प्रीलिम्स क्या है, रिजेक्शन क्राइटेरिया। 10 लाख लोगों से कोई बात करेगा नहीं ना, बात करने लायक है ही नहीं वो लोग। तो ये चीज अपने अंदर कुछ तो, और केवल काम पढ़ने से होगा, केवल काम पढ़ने से होगा, सटीक पढ़ने से पढ़ो, और उसके बारे में एकम ज्ञानम ज्ञानम विवेक ज्ञानम विज्ञानम, एक सी जगह से चालू करो, है ना। एक जगह से चालू करो, और वहां से ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके लिंक बनाते जाओ, लिंक बनाते जाओ, लिंक बनाते जाओ।
है ना। आप यहाँ पे हो, आपसे आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली से आपके रिलेशन मतलब ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन से आपके जो रिलेटिव है, रिलेटिव से ये सोसाइटी है, सोसाइटी से क्या है, स्टेट है, कंट्री है, पूरा वर्ल्ड है ना, पूरा वर्ल्ड है ना, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि यू डोंट, आपको कुछ लेना देना नहीं है, कोई ब्रिटिशर्स आ गया, उन्होंने हमारे ऊपर 200 साल राज किए, है ना, कोई लड़की आ गई बोले कि हम लाइक यू, है ना, तो फ्लैट हो जाओ, उससे थोड़ी सोचोगे इसके पुरखे ने हमारे ऊपर राज किया था, बोला कि यार ये तो अच्छी बात है ना, तब भूल जाओगे उसको। तो पूरी दुनिया एक है, ठीक है, पूरा संसार सृष्टि एक है। तो ऐसे आप कर करके सब लिंक कर डालो, है ना, लिंक कर डालो, जो आपके ऊपर बीत रही वही सबके ऊपर बीत रही है ना। आपको कोई चीज अच्छा नहीं लगता, दूसरों को भी अच्छा नहीं लगेगा उस हिसाब से। नहीं नहीं, मैं यूनिक हूँ, है ना, भगवान ने तुमको यूनिक बनाया हुआ है, तुम्हारी आइडेंटिटी है, लेकिन सब उसी में हो, मोह माया काम क्रोध लोभ से सब सबको वही चाहिए, इसीलिए 10 लाख लाइन में लगे हैं, जो आपको चाहिए वही सबको चाहिए, हाँ, चक्कर में लगे हुए हो। तो आप कैसे पढ़ाई, टेक द प्रॉपर बुक्स और पढ़ाई करते रहो। अच्छा लेट्स सी, ये एक इजी क्वेश्चन पूछता हूँ, सबको आपको आ जाना, आज बता देना, नहीं तो इसमें बेइज्जती हो जाएगी, क्लास की भी होगी, मेरी भी होगी, है ना। इन a class of 50 people, in a class of, फ्रॉम लेफ्ट साइड, विनोद का रैंक है 30th, कितना, है ना। इन a class of 60 people बोल दो, कितने, विनोद रैंक फ्रॉम लेफ्ट साइड इज 30th, व्हाट इज विनोद रैंक फ्रॉम राइट साइड, राइट, करेक्ट, 31 इज द, 31st इज द करेक्ट आंसर। मैं जानबूझ के ऐसा इजी क्वेश्चन पूछा, फिर भी आधे लोग नहीं समझे, समझा, पक्का, देखो उसको नहीं समझा, ईमानदार है। आप, आपका नाम क्या है, सुमित, चलो अमित की जगह सुमित आ गया, कोई बात नहीं, सुमित, सुमित यहाँ पे है, लेफ्ट साइड से आपका रैंक है 30th, है ना। तो आपके पीछे कितने लोग हैं फिर, 30, है ना। फिर इस साइड से काउंटिंग करेंगे, तो ये 30 के बाद फिर आपका नंबर आएगा, ये 30 के बाद फिर आपका नंबर आएगा, तो आपका नंबर हो जाएगा 30, गॉट दैट, नहीं समझा, इसको बोलते हैं रैंकिंग, व्हाट यू कॉल इट एज, रैंक, इजी था। निकाल लिया, सोचते 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 3 घंटा आया ना, करेक्ट, कैसे निकाला आपने, हाँ, चलो ठीक है, नाइस, अच्छी बात, मैं ये देख, ये हुआ अप्रोच, ठीक है, आप लोग बातों बातों में रहे हो, अपना काम करते ही रहे, आपने भी निकाला, चलो ठीक, अच्छी बात, सही है। तो माइंड भी आपका चलो चल रहा है, लेकिन आप उसने मिस किया, क्लास में थी नहीं बेचारी, है ना, शी वाज नॉट इन द क्लास, ये नहीं है, बाकी नहीं आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा है, 9:40 ना, हाँ, करेक्ट, कॉमर्स बैकग्राउंड, कॉमर्स वाले करेंगे, तो फाइंड द ऑड वन आउट, AEFLK, फाइंड द
ए नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। कॉलेज, हाँ अब ठीक है। फाइंड द ऑड वन आउट। हाँ, नहीं आएगा। आएगा। वेरी गुड, क्वेश्चन लिख लेना अच्छी बात है। जो भी मैं यहाँ पे लिखूं आप वहाँ पे नोटबुक पे सब लिखते जाओ, एक भी छूटे ना। और कभी रिवाइज किया ना, वो आइडिया काम से आएगा, आइडिया। जो भी मैं लिख रहा हूँ हियर, राइट, ऐसे नहीं कि कल सुन के हटा दो, वो लिखते जाओ। करेक्ट आंसर इज एल। करेक्ट आंसर क्या है? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 लाइन सेगमेंट, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे एक और। ये कभी आएगा माइंड में आपको? ये कभी आएगा माइंड में आपके? नहीं आएगा ना। आपने क्या क्या नहीं सोचा है ना, क्या क्या नहीं सोचा। ये यूपीएससी है भाई, है ना, क्या क्या नहीं सोचा होगा आपने, सोचो। ट्राई करो, क्या क्या नहीं सोचा। तो इसलिए ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब क्या मौका मिल जाए बोल नहीं सकते, है ना। लास्ट बॉल पे 6 मार सकते हो, है ना। टर्म का नाम क्या है? मैंने अभी कभी से सोचा नहीं यार, टर्म का नाम भी। टर्म का नाम उल्लू रख दो। समझाइए, क्या क्या मतलब, कितना दिमाग लगाओगे, है ना, कितना दिमाग लगा। क्लिक हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो फिर, है ना। हाँ जी, हाँ जी। अब क्या करें हम लोग? 25, 64, 15। फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें फाइंड द ऑड वन आउट। फाइंड द ऑड वन आउट। 50। करेक्ट आंसर है 50। नहीं नहीं, करेक्ट आंसर 25। करेक्ट आंसर 25। नहीं नहीं, करेक्ट आंसर 50 है। अच्छा देखो, ये इवेंट नंबर है, ये इवेंट नंबर है, ये इवेंट नंबर, और ये क्या है? लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये नहीं है। अब क्या करोगे? अब बताओ। हाँ, समझे क्या ये? देखो, अच्छा बताओ। पीवी सिंधु, है ना। टी कश्यप, पुरुपल्ली कश्यप, पुरुपल्ली कश्यप, सानिया मिर्जा। क्या नाम है इसका? सानिया मिर्जा। वेरी गुड, आप क्वेश्चन समझ गए, है ना। अब इसमें फाइंड द ऑड वन आउट कैसे करोगे? ये बैडमिंटन है ना, ये भी बैडमिंटन है, ये भी बैडमिंटन है, और ये, बोलो क्या होगा? सानिया मिर्जा। अच्छा अब देखो, ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, और ये
फीमेल है। अब बताओ अब किसको प्रायोरिटी देखो, उनके जेंडर को कि उसके स्पोर्ट्स को? ये कोई नॉर्मल क्लासिफिकेशन नहीं है मेल फीमेल वाला, है ना, सिलेक्टेड पर्सन है ना, स्पेशल नाम है ये सब। नहीं, दे हैव स्पेशल कैरेक्टर्स, दे आर नोन बाय से कि ये मेल है ये फीमेल, इससे नहीं जाने जाते। जरा जाने जाते हैं उनके स्पोर्ट्स की वजह से ना। तो स्पोर्ट्स विल बी द क्राइटेरिया। समझ आ रहा है? इंपॉर्टेंस किसको देना है? करेक्ट। तो आंसर विल बी सानिया मिर्जा। ऐसा रिलीजन को मत देना, तीन क्या नाम है, हाँ? वो क्राइटेरिया रहेगा, ये क्राइटेरिया नहीं रहेगा। अंडरस्टैंड? तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आएंगे, राइट? नहीं, कई सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको इंपॉर्टेंस फिक्स करनी है। तो वैसे ये सब परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट बीइंग अ परफेक्ट स्क्वायर इज स्पेशल स्पेशल थिंग, राइट? तो 50 इज द ऑड वन आउट। नहीं समझा? ऐसे ही। अब समझ आ रहा है यूपीएससी कैसा है? नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा आपको उसके बारे में जानना है। इफ यू डोंट नो अबाउट देम तो कैसे कर पाओगे? यू हैव टू नो अबाउट देम। पता नहीं है, क्या करोगे? चलो, अच्छा, इन 12 आवर्स, इन 12 आवर्स मिनट हैंड क्रॉसेज आवर एंड हाउ मेनी टाइम्स? मिनट हैंड क्रॉसेज आवर एंड हाउ मेनी टाइम्स? 12 घंटे में मिनट की सुई घंटे की सुई को कितनी बार क्रॉस करती है? 11 टाइम्स। कैसे 11 टाइम्स? कैसे 12 बार? ऑप्शन आर 10, 11, 12, 13। ऑप्शंस आर 10, 11, 12, 13। कितनी बार होगा? 10 टाइम्स। आप लोग बताओ। 11 टाइम्स। सिंपल सा मैंने क्वेश्चन पूछा है, नहीं पता है? सबके पास घड़ी देखा हुआ है ना कितनी बार का? करेक्ट आंसर इज 11 टाइम्स इज करेक्ट आंसर, है ना? चलो, ये नहीं है, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट, थोड़ा सा बच गया, नहीं तो परफेक्ट सर्कल हो जाता था ना। ये मिनट हैंड है ना? और ये आवर हैंड है। यस, वहां से स्टार्ट हुआ, वहां से स्टार्ट हुआ, तो हम लोग बोले मिनट हैंड ने क्रॉस किया, बोले या नहीं बोले? क्या बोले, क्रॉस हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, मान लो नहीं हुआ। तो 1 घंटे बाद क्या होगा? मिनट हैंड वापस यहाँ पे आ जाएगा, है ना? और आवर हैंड कहाँ रहेगा? एक पे। पहली बार क्रॉस नहीं किया अभी तक, 1 घंटा बीत गया है। बीत गया या नहीं बीत गया? तो अभी तक क्रॉस किया, अब कब क्रॉस करेगा? इसको 5 मिनट और आगे जाना होगा, है ना? 5 मिनट। तो 5 मिनट तक वो उसका इंतजार करता रहेगा कि तू आना, फिर साथ में चलेंगे। तो 5 मिनट में भी थोड़ा सा मूव हो जाएगा ना, थोड़ा सा मूव होगा। करेक्ट। तो एक के थोड़ा सा आगे जाएगा, एक के थोड़ा सा जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इसको कितना मिनट लगेगा फिर क्रॉस करने में? 60 मिनट हो गया, और 5 मिनट और आगे जाना है, तो 65 मिनट। तो ये 65 is to 5/11 मिनट लगेगा, कितना? टू क्रॉस इट वंस।
तो ये 1 पे क्रॉस नहीं करेगा, 1 पे क्रॉस नहीं करेगा, 1 के थोड़ा सा आगे, सेकंड टाइम 2 पे थोड़ा सा आगे, थर्ड टाइम 3 से थोड़ा सा आगे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 9, 10, ऐसे कुछ तो आएगा, 10 इधर, 11 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा। अब देखा ना, 11 टाइम्स वहां पे आ जाएगा ऐसे। अंडरस्टूड? वो चैप्टर है क्लॉक। कौन सा चैप्टर है? क्लॉक। अच्छा, एक छोटी बच्ची है, वो मार्केट जाती है अपने डैड के साथ में। ओके, तो वहां पे उसके डैड को एक आदमी मिलते हैं, बच्ची छोटी सी है, बोलते कि आई रिकॉग्नाइज यू बट हाउ यू आर रिलेटेड आई कैन नॉट फिगर इट आउट। द स्मॉल गर्ल ऑफ 4 years, 3 years, 3 years said, the man says, है ना, it's simple, your mother calls my mother as mother, your mother calls my mother as mother, how they are related? मामा हुआ ना? yes or no? Understood? yes, समझा या नहीं समझा? समझा ये? एक क्वेश्चन लिखो, चलो अच्छा। ये क्या हो गया? ब्लड रिलेशन। फैन ऑफ कहाँ है? कौन सा बंदा? वही। ओके, सो नेक्स्ट वन, looking into the eye of a man, looking into the eye of a man, looking into the eye of a man, comma, Vasudev said, वासुदेव नाम अच्छा नहीं लगा तो विनोद, ठीक है? वासुदेव said, comma, inverted comma starts, your son, inverted comma starts, your son is my son's uncle. Your son is my son's uncle. Inverted comma close, full stop. Inverted comma close, full stop. How is the man related to Vasudev? How is the man related to Vasudev? बताओ ये। कितने लोग, कितने लोग हैं इस चालू रहता है? अभी लेकिन कितने लोग रहते हैं ऑनलाइन पे? हाँ? है ना? कौन सा सच बोला? हाँ, हमको पता चल गया क्या? मैं लेट आया था, कैसे बताऊँ? तुषार सर आते भी है कि नहीं आते? ऑनलाइन कितने लोग हैं पता है? वैसे कोई रहता है? ये चालू कर दे। यहाँ से देखो, मोबाइल में देखे, गूगल सर्च, फिर क्या देख रहे हो? चालू है कोई जिसका स्पीकर देखोगे सर, चालू है ये? तो क्या आंसर है? ब्रदर, शी टॉकिंग टू ब्रदर। मिला आंसर? नहीं मिला। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वासुदेव? द मैन इज द फादर ऑफ वासुदेव। द मैन इज द, है ना, वासुदेव का अपने बाप से बात कर रहा है ना?
मैन इधर है ना, द मैन इज हियर, बोल दे योर सन, आपका बेटा, है ना, आपका बेटा मेरे बेटे का अंकल है। विनोद का, सॉरी, चलो वासुदेव विनोद एक ही हो गया, इस बार वी हो गया विनोद। तो वासुदेव का बेटा अंकल किसको बोलेगा? वासुदेव के भाई को। तो ये दोनों भाई भाई हो गए। इसका बाप ये है, इसका बाप ये है ना, जिससे विनोद बात कर रहा है, वासुदेव बात कर रहा है। योर सन, आपका बेटा मेरे बेटे का अंकल है ना, तो ये अंकल हुआ, है ना। लेकिन ये किसका बेटा है? इसका, जिससे विनोद बात कर रहा है, वासुदेव बात कर रहा है। तो मतलब, और ये दोनों भाई भाई हो गए, है ना, भाई का बाप अपना बाप, है ना? नहीं, अंडरस्टूड। चलो ठीक, ऐसी है कोई चीजें आप, ठीक। What time? I end the class की ये सब मैं बता दूं। हाँ, should I end the class or continue and discuss the answers? ये हुई ना बात, अच्छी बात। आई एम हैप्पी कि तूने ऐसा बोला, है ना, नहीं मजा चले जाता है। जो अभी है कर लेते है ना, वैसे मैं लेट आता हूँ, लेट छोड़ता हूँ, है ना, जानते हो ना। चलो फिर ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, याद है आपको? क्या था? देखो, ए इज 20% लेस देन, तो लेट बी का कितना रहेगा, तो ए का कितना हो जाएगा 80। ये सब आई कैन डिस्कस बाय 3-4 मेथड्स, बट आई एम जस्ट डिस्कसिंग द सिंपलेस्ट सो दैट यू गेट इट इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर, है ना। तो हु इज लेस, ए इज लेस, तो बोल रहे हैं कि हाउ मच परसेंटेज बी, इन दिस केस बी इज गोइंग टू बी ऑलवेज मोर ना, बी हमेशा ज्यादा ही रहेगा। तो अगर ये 100 हुआ तो ये कितना होगा, ये 120 होगा। यहाँ पे लिखता है एक्स, क्या लिखेंगे, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 100 × 100 अपॉन, अगर ये 100 हुआ, कितना आपने 120 बोला था ना, ठीक है 120 नहीं होगा, देखो ऐसे ऐसे करते हैं, करेक्ट। क्या हो जाएगा फिर, ये 0 0 गेट कैंसल, 4 2 जा 4, 25 जा एंड 2 5 जा, 25 5 जा 125, तो ये कितना होगा 125, 125 माइनस 100, 25%, सो करेक्ट आंसर इज 25%। इसके डिटेल में हम लोग जाएंगे व्हेन वी डू द टॉपिक परसेंटेज, ओके, व्हेन वी डू द टॉपिक परसेंटेज। सेकंड वाला क्या था? ओके, एसपी इज 990, कॉमर्स पीपल विल गेट इट वेरी इजीली, है ना। 990 each. Now, what is 10% profit means? That means if CP is there, if CP is 100, SP will be 110. Yes or no? Correct? 10% profit means if CP is 100, SP will be 110. But exact SP is what? 990. Yes or no? So this will be X. Cross multiply करोगे, X का वैल्यू आ जाएगा आपको 900. क्या आ जाएगा? 900 पे खरीदा, 990 पे सेल किया, है ना, तो 90 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। नहीं समझा? 10% ऑफ 900 इज 90। यहाँ पे एसपी है 990, फिर भी उसको लॉस हो रहा है। यहाँ पे देखो 990 पे सेल किया तो प्रॉफिट हुआ, दैट मीन्स ही मस्ट हैव बॉट लेस देन 990। यस और नो?
यहाँ पे 990 पे सेल किया, फिर भी लॉस हो रहा है, मतलब ही मस्ट हैव बॉट मोर देन, है कि नहीं? तो इसको अलग प्राइस पे खरीदा है, इसको अलग प्राइस पे खरीदा है, करेक्ट? 10% लॉस मीन्स व्हाट? इफ सीपी इज 100, एसपी विल बी 90, बट एक्चुअल एसपी इज हाउ मच? 990। इसको लिखेंगे वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वाई का वैल्यू आ जाएगा 1100, हाउ मच? राइट? टोटल सीपी क्या हो गया? टोटल सीपी इज 900 प्लस 1100 is 2000, right? And total SP 990 plus 1980, right? He bought both the watches for rupees 2000, but he sold both the watches for rupees 1980. So overall, what is profit or loss? Loss of how much? 20 rupees. So loss equals to 20. But they ask me for percentage. So he invested how much? 2000. On 2000, there is a loss of, right? On 2000, he invested 2000, there is loss of 20, right? So you want to find percentage multiplied by 100%. That is nothing but 1% is loss. How much? 1% loss. Understood? 1% loss means 100 रुपए में खरीदा तो 99 में सेल किया. Understood that? आपको okay. Now next question क्या है? ये क्वेश्चन रहे आज मुंबई होने वाला. Many times in many competitive exams, people, because they know people are going to make mistake, तो लोगों को पता नहीं रहता, तो लुक, इसका एक फॉर्मूला है, राइट? जस्ट आई एम डिस्कसिंग द फॉर्मूला. लेटर ऑन हम लोग व्हेन वी डू द टॉपिक एट दैट टाइम, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. लिख लो फॉर्मूला. एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2v1 v2, so that is 2 into 60 into 40 upon 60 plus 40. So 2 into 60 into 40 upon 100. First you add that. 0, 0, 0, 0 get cancelled. That is 48 kmph. आप लोग क्या बोल रहे थे? 50 है ना? और आप समझ भी गए थे, है गड़बड़ सब. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये कॉपी हो गया? A can do the work in 10 days. B can do the same work in. जो आप मेथड बता रहे हो उससे भी बता सकता हूँ, बट डिस्कसिंग दैट प्रॉपरली इट टेक्स टाइम. इट टेक्स टाइम. तो मान लो इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ? 10 एंड 15 का 30. एलसीएम इज हाउ मच? 30. ओके. मान लो टोटल 30 पिज्जा है, पिज्जाज जो खाते हैं ना, डोमिनोज पिज्जा. तो 30 पिज्जा खाने के लिए ए को कितना दिन लगता है और बी को कितना दिन लगता है? समझा क्या आपको? मान लो यार, मान मैथ्स है ना. assume, let us consider, let us assume. काम कुछ तो काम कर रहे हैं ना, they are doing some work. To do that work, A is taking how many days? B is taking, what is the work? We don't know. Let that work is eating 30 pizza, 30 सैंडविचेस, 30 रसगुल्ला ले लो. हाँ, एक रसगुल्ला जार में रखा हुआ है, पिज्जा तो रखोगे नहीं, एक बड़े जार में 30 रसगुल्ला रखा हुआ है, और ये हर दिन नहीं 10 दिन तक खाता है. ये कितने दिन तक खाता है? Assuming that they are doing
the same amount of work every day, assuming that ऐसा नहीं कि आज कम किया कल ज्यादा करेगा फिर कम फिर ज्यादा डबल ट्रिपल, नो, व्हाट वी आर assuming that each and every day they are doing the equal amount of work every day. So what is age 1 day's work? एक दिन में कितना खाएगा? 30/10, 3 rasgullas every day. What is B's 1 day's work? 30/15, that is he is eating 2 rasgulla every day, right? A plus B is 1 day's work, A plus B is 1 day's work. बोलो क्या होगा? 3 plus 2, that is 5 days. दोनों मिलकर के एक दिन में कितने रसगुल्ले खा रहे हैं? टोटल रसगुल्ला कितना है? कितना दिन चलेगा? 6 days. करेक्ट आंसर इज 6 days. Time for A and B. Time for A and B. That is 30/5. That is equal to. Anything wrong with this method? दूसरा मेथड है, कॉन्सेप्ट विल डिस्कस दैट लेटर ऑन. नहीं समझाइए, इसीलिए तो ये मेथड बताया, सो दैट समझा. यूनिटरी मेथड मैंने लगाया नहीं. नाउ व्हिच क्वेश्चन? ये वाला, हाँ ये वाला तो आप लोग बता सकते हो. The cost of 20 pence is 30 rupees. What is cost of 30 pence? यहाँ पे आ गया 45, तो यहाँ भी 45 आएगा. 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, 30 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 45 नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग. यार जब से कॉस्ट बढ़ जाएगा, सॉरी, इफ नंबर ऑफ पेन इंक्रीजेस कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज. बट यहाँ पे अगर 20 आदमी 30 दिन में करते हैं तो नंबर ऑफ पीपल बिकेम मोर, दे शुड टेक lesser time. The answer should be less than 30 days. That is your understanding. Yes or no? Yes. Yes or no? That is your understanding. करेक्ट. तो आंसर बोलेंगे ये कैसे पता चलेगा? दैट यही सबको अंडरस्टैंडिंग आपको करना है. नहीं यही यूपीसी है ना. दैट्स व्हाई यू हैव जॉइन द कोचिंग क्लास. यहाँ समझेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, राइट. तो इसमें क्या करोगे आप? कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे फिर? देखो जो इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन में हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई. क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई. इसमें स्ट्रेट मल्टीप्लाई. इसमें क्या करते हैं? यहाँ पे आप लिखोगे y, क्या लिखोगे? तो यहाँ पे लिखोगे x. तो यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू 30 इंटू 30/20, दैट इज इक्वल टू 45. अंडरस्टूड. और यहाँ पे रहेगा क्या? 30 इंटू 20 इक्वल टू 30 इंटू y, राइट. तो 30 गॉट, so y is equals to 20. अंडरस्टूड. और ऐसे अब बुक ले लो सब लोग, आपके हाथ में कोई बुक आ जाए और प्रैक्टिस चालू कर दो, है ना. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मैथ्स एवरी डे. कितना सम करोगे? खुद बैठोगे तो पूरा चक्कर आ जाए, झमेला आ जाए, चक्कर, है ना. मैथ्स के लिए यहाँ पे अच्छा लग रहा है. घर जाओगे बुक लोगे फिर से वही बोला सर क्या, है ना. व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन? 10, 15 एंड इसका एलसीएम निकालना है. क्या निकालना है? 2 5 जा 2 15 जा 2 18 जा 2 5 15 9 और फिर 3 5 5 3, then 3 5 5 1 at the last 5 1 1 1. एलसीएम विल बी व्हाट? एलसीएम याद है आप लोगों को? नहीं याद है? इफ यू फॉरगॉटन तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 into 10 180 मिनट. 180 मिनट मतलब क्या जानते हो? 3 hours. After 3 hours, so 10 AM plus 3 hours is equal to 1 PM. All the signal will be read again after 3 hours, that is 1 PM. फिर से कब होगा? After 3 hours at 4 PM. So every 3 hours there will be
बिकमिंग रेड, है ना। नहीं आता तो आप लोग ऐसे कर भी सकते थे, कैसे जानते हो, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 10 10 10 ये वाला था हर कितने मिनट पे, 10 मिनट पे ना। ये 10 10 पे होता था, 10 20, 10 30, 10 40 ऐसे, और ये वाला एवरी 10 15, देन 30, देन 45, देन 11 o'clock, करेक्ट है ना। फिर ये होता था 11 15, 11 30, 11 45, 12, राइट। ये 12 15, 12 30, 1, और ये 10 10 के मल्टीपल में आता था। ये क्या रहेगा, 10 36, राइट। फिर क्या हो जाएगा, 11, कितना होगा इसमें, 36 ऐड करो, 11 बज के 12 मिनट पे, फिर 48, फिर कितना हो जाए, 48 प्लस 12, 12 24, और फिर 1 o'clock। तो 1 o'clock ये भी होता था, ये भी और ये भी। ऐसे भी कर सकते विदाउट डूइंग एनी एलसीएम मेथड, नहीं कर सकते थे। आर्ट्स वाले तो ऐसे ही करते हैं, क्वेश्चन समझ लिए, क्वेश्चन समझ के क्वेश्चन से चालू कर देते हैं। अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, अरे हाँ सही, तो हम लोग कर सकते थे। ऐसे होता है, तो स्टार्ट थिंकिंग लिटिल बिट ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कैन डू वर्क इन 10 days, बी कैन डू, हो गया। कैसे बताया मैंने इसको, कैसे बताया, एलसीएम, बाकी क्या होगा ना। इसके लिए एक मेथड भी है, जो 10 टोटल टाइम ऐसे लिखो, है ना, टोटल फॉर ए एंड बी, है ना। तो हो जाएगा ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ए इंटू बी अपॉन, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 10 into 15 अपॉन 10 प्लस 15, दैट इज 150 अपॉन 25 इज इक्वल टू 6 days। इसमें देखो, उस लड़के ने क्या, उसने बोला था 8 days, है ना। तो 12 days, 12.5 समथिंग ऐसे। आप कॉमन सेंस यूज करो कि ए अकेले अगर 10 दिन में करता है, ए अकेले 10 दिन में करता है, तो बी उसके साथ में हेल्प कर रहा है ना, तो आंसर शुड बी लेस देन 10 days। नहीं समझा, तो 12 एंड 12.5 तो एवरेज तो निकाल नहीं सकते, नहीं समझा। ए अलोन हिमसेल्फ कैन डू द वर्क इन 10 days, तो बी काम बनाने जा रहा है ना बिगाड़ने जा रहा है, नहीं समझा। तो ये सारी थिंकिंग आप, अच्छा, तो आंसर शुड बी लेस देन 10 days, तो आपको 12 12.5 बोलना ही नहीं चाहिए, आंसर शुड बी लेस देन 10 days। आप इतना भी बोल सकते थे, सर आंसर शुड बी लेस देन 10 days, आई विल कंसीडर इज करेक्ट आंसर, हाँ दैट इज राइट ना, 10 days से लेस होना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ऑफ द डे, कितना टाइम हो गया, 121, क्या परफेक्ट टाइम है ना। मैंने 11:20 से चालू किया था, शायद से कभी 25 से, चलो हो जाएगा 25। अच्छा, मेरा फेवरेट क्वेश्चन ये फिर से आ गया है ना। स्टार्ट करता हूँ मैं फेवरेट से, एंड करता हूँ फेवरेट से। अब लोग स्क्वायर क्यूब मल्टीपल से सब आता है। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 11, स्क्वायर ऑफ 13, स्क्वायर ऑफ 15। अब देखो कम लोग बोलेंगे, स्क्वायर ऑफ 19, 360, 361, एक ही आंसर करेक्ट है। और कोई बोला 361 नहीं, स्क्वायर ऑफ 17, 289। अब कोई नहीं बोलेगा, स्क्वायर ऑफ 29, 841। व्हाट इज क्यूब ऑफ 7, 343। क्यूब जानते हो ना, दैट इंटू दैट इंटू दैट, है ना। ये 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 1 का क्यूब क्या होता है, थोड़ी के लोग 3 बोल देते हैं,
1 इज 3, 1 ही होता है ना। अच्छा, व्हाट इज 34 माइनस 29? 5। अच्छा, 27 माइनस 15, 12 माइनस 18, माइनस 6 प्लस 17, 11 का हाफ क्या होता है? व्हाट इज हाफ ऑफ 11? 5.5 का हाफ। करेक्ट आंसर 2.5 आता है आप लोगों को। अच्छा, ये सब चीज आते हैं ना, ये आई एम हैप्पी ठीक है। तो एक वेल है, देयर इज अ वेल, इन दैट वेल मत लिख जाने दो, देयर इज वेल, हाँ। देयर आर 29 frogs, देयर आर 19 frogs died, how many are left in the well? There are 29 frogs, 19 frogs died, how many are left in the well? क्या रहेगा आंसर? आंसर इज 29 ओनली ना। समझा नहीं समझा? ये सर, मैंने ये नहीं पूछा हाउ मेनी आर स्टिल लिविंग, ये नहीं पूछा था, हाउ मेनी आर लेफ्ट इन द वेल। समझा? तो ऐसे क्वेश्चन सच में यूपीएससी में ये वर्ड, कभी कभी वर्ड ही लोग नहीं पढ़ते, तो आप ये वर्ड्स का भी ध्यान दो। वही वेल है, सब लोग खत्म हो गए, सबकी आयु पूरी हो गई, एक बच्चा है, बेचारा क्या करे, अकेले अकेले बोल रहा था, ही वांट टू क्लाइम द वेल, ही वांट्स टू क्लाइम अप टू द वेल। तो क्या है, द डेप्थ ऑफ द वेल इज 15 मीटर, द डेप्थ ऑफ द वेल इज 15 मीटर, राइट? डेप्थ ऑफ द वेल इज 15 मीटर, ओनली वन फ्रॉग इज देयर। मैं एफ लिख देता हूँ, समझ रहे हो है ना, एफ मतलब फ्रॉग, can't draw the frog, है ना, इसलिए। तो during first day it climbs 5 meter, during first day it climbs, but during second day it slips 3 meter down, understood? It keeps on doing so till he comes out of the well. So in how many days the frog will come out of the well? My all time, one of the all time favorite question समझा नहीं समझा? कुएं की गहराई है 15 मीटर, पहले दिन फ्रॉग जो है 5 मीटर ऊपर चढ़ता है, दूसरे दिन वो 3 मीटर फिसल जाता है। ऐसे वो करते रहता है, चढ़ेगा उतरेगा फिसलेगा, चढ़ेगा फिसलेगा, चढ़ेगा फिसलेगा, कितने दिन में वो फ्रॉग जो है कुएं के बाहर आएगा? और एक बात बताऊं, 7.5 इज द ऑब्वियस आंसर, एंड ऑब्वियस आंसर इज ऑब्वियसली रॉन्ग, ठीक है? ऑब्वियस आंसर इज ऑब्वियसली रॉन्ग। 15 डेज, 15 डेज करेक्ट नहीं, 15 डेज रॉन्ग आंसर। हाँ, नहीं आएगा बाहर, हिम्मत नहीं हारेगा, आएगा बाहर। कब तक आएगा, है ना? आएगा, एक दिन आएगा, हिम्मत नहीं हारने वाला है, ऐसा वैसा प्रॉब्लम नहीं है भाई, he will come up the well। नहीं, जो बोल रहे कि सर वो करते रहेगा, फिसलते रहेगा, कहाँ बाहर नहीं आएगा। अच्छा, वो ऐसा है, हाँ आएगा। अच्छा देखो, हाँ, करेक्ट आंसर इज 11 डेज, करेक्ट आंसर इज 11। कैसे देखो, एक दिन चढ़ा, दूसरे दिन फिसल गया, तो इन 2 days इट इज क्लाइंबिंग हाउ मच? 2 मीटर, भाई सेंटीमीटर मत बोल यार, इन 2 days इट क्लाइंब्स। तो अब 2 मीटर के हाइट पे है, फिर से चढ़ेगा, फिर से फिसलेगा, अगेन इन 2 days क्या होगा ये? 2 मीटर, अगेन 2 days क्या होगा? 2 मीटर, 2 days में अगेन 2 मीटर, 2 days में कितना हो गया? तो कितना दिन हो गया? 10 दिन। और कितने मीटर पे अभी हो? 10 मीटर, है ना? 10 दिन में कितने ऊंचाई पे आ गया हो? 10 मीटर की ऊंचाई पे आ गया, करेक्ट। 11 घंटे क्या करेगा वो? 5 मीटर
तो आ गया 15 मीटर। आ गया बाहर, दुनिया देखा यार, दुनिया बहुत अच्छी है ना। कहाँ कुएं में पड़ा था मैं। तो 10 + 1 11th डे, 11th डे इट विल कम आउट ऑफ द, हाँ हाँ, कंडीशन बता दिया था मैंने ना, कंडीशन। इसलिए क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन देखा कैसे है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चलो वी एंड द क्लास, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन। भाई ये बंद कर दे, देखा बच्चों को? सबका यही है, फाउंडेशन वाले